everyone, myself Chanchal Patel, and today in this video we discuss 10 rules of a healthy lifestyle. Let's start. So, first is balanced diet. Eat whole foods, vegetables, fruits, protein, and minimize processed food and sugar. Is regular exercise. Aim at least 150 minutes of moderate aerobic activities. Do whatever you like gym, yoga, and aerobics. Whatever you like, do regular. Is stay hydrated. Drink enough water throughout the day to keep your body hydrated, and limit sugary and coffee-scented drinks. Start at like healthy drinks, like multiple drinks recipes are available on everywhere, every like social medias on YouTube, and check it that. And on drinks, add some healthy and organic medicines like tulsi and ginger. They help you very well in your mental and physical health. Enough sleep. Take 8 to 9 hours of sleep every day, and quality sleep is very important, is essential for your physical health and mental well-being. And when you go on your bed at like 8 p.m. or 9 p.m., before 30 minutes you have to keep your phone side, your gadgets sides, and like आपको meditate करना है. Stop overthinking, stop your thoughts, just do meditation. Then you got a quality sleep, and quality sleep is very important. अगर आप 1 बजे या 2 बजे रात को सोते हो और उसके बाद अगर आप 10 to 11 आवर्स का भी आप स्लीप ले रहे हो, नींद ले रहे हो, उसकी कोई वर्थ इट नहीं है. वो वेस्ट ऑफ टाइम. जो एक गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है सोने का, अगर आप उस टाइम पर सोते हो तो आपका मेंटली आप मैनेज स्ट्रेस. प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. Start meditation, breathing exercises, om chanting regularly. And if you are the beginner one, so start listening guided meditation videos. Start with a few minutes, 4 minutes, 5 minutes, and then you love that. और फिर धीरे धीरे आपको ही उससे मेडिटेशन से आप खुद उसे करना चाहोगे, और जब 30 मिनट्स कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. सो यू हैव टू फॉलो. आप 10 to 15 डेज तक आप फॉलो कीजिए, 5 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू विल लव दैट. एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, आपका ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा. आपका जो फोकस जो हमारा बहुत बार लग नहीं पाता है, स्टडीज़ है या किसी भी चीज़ को सीखने या समझने के लिए जो हमारा फोकस नहीं हो पाता है, उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. कंसंट्रेशन जब हम नहीं कर पाते हैं ओवर थिंकिंग या मल्टीपल थॉट्स की वजह से, तो उन सारी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प. एंड लिमिट अल्कोहल. Nowadays our this generation is like if someone is drinking alcohol or doing smoking, they feel they are very cool, but seriously that's not cool. एक्चुअली अभी तो हमें ये सारी चीज़ें कूल लगती है, बट कुछ टाइम के बाद यू विल रिग्रेट फॉर दैट. क्योंकि जब आई थिंक आप शायद खुद को जब आप कंट्रोल भी करना चाहोगे, तब आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे. आपकी बॉडी से आपका कंट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, और आपकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा इतनी डैमेज हो चुकी होगी कि शायद आप उसे रिकवर भी ना कर पाओ. सो इफ़ यू आर द वन जो आपने ये सारी चीज़ें कभी ना की हो, सो ट्राई भी मत करना. एंड इफ़ यू आर द वन कि यू आर डूइंग ऑल दिस, सो प्लीज़ नाउ से गुड बाय. इट इज़ लर्निंग. प्लीज़ नेवर स्टॉप लर्निंग. इफ़ यू आर नाउ ऑन दैट, बहुत सारे हो जाते ना, वी नो एवरी थिंग. नेवर बी लाइक दैट. ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू. इफ़ यू आर, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, फ्रीलांसिंग, HR कंसल्टिंग, किसी में भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, गो फॉर दैट. सर्च वी आर सो लकी. 50% content available on our YouTube, every social media apps. Just go and do learning from them. And if you are interested in another fields or in fashion designing or makeup artist,
go for that. And if you are the person if you're a job person, or if you're doing a private jobs, I will tell you, if you do like courses like consulting, HR, many courses are available in a free of cost. when you add this job person, and जितने ज़्यादा आप कोर्स करते हो, जितने ज़्यादा लाइक डिजिटल मार्केटिंग, HR रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है, आप जितने ज़्यादा कोर्सेज करते हो, सर्टिफिकेट्स लेते हो, नॉलेज लेते हो, स्किल्स लेते हो, आपका CV उतना ज़्यादा लाइक डेवलप जब आप करते हो, तब आपका सैलरी भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और पोजीशंस भी। और पर्सनली मैंने ये अभी तक ऑब्ज़र्व किया है मेरी प्राइवेट जॉब में, कि जितना कम आपका सैलरी होता है, आपका वर्क उतना ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा आपका सैलरी होता है, उतना वर्क आपका कम होता है। ओके, सो जस्ट try to do more courses so you can add on your CV, और if you are the one on a private job, तो आपको ही पता होगा जितने ज़्यादा कोर्सेज, एजुकेशन, डिप्लोमा, डिग्री आपकी जितनी होगी, आपकी सैलरी उतना ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सो गो फॉर दैट, CV में ऐड करो, हाई सैलरी अचीव करो। इज प्रैक्टिस सेफ हैबिट्स। ओके, सो लाइक अगर आप कोई सी भी हैबिट्स हो, लाइक नाउ एवरीवन लाइक आपको सब सजेशंस देते हैं, जैसे मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ 10 हैबिट्स का। अगर आप 10 ही हैबिट्स को आज के दिन सोचोगे कि मैं 10 ही जितने भी हैबिट्स हैं मैं आज से इन्हें अपनी लाइफ में ऐड कर लूँ, अपने रूटीन में ऐड कर लूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। एक एक चीज़ को आपको अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, डेली उस पर वर्क करना पड़ेगा, और जब आप उसे 30 to 40 डेज तक कंटिन्यू करोगे, कंसिस्टेंट करोगे, तो वो आपकी लाइफ का पार्ट कैसे बन जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। सो आई विल गिव यू अ 30 डेज ऑफ चैलेंज। आप इसको ट्राई करना, 30 to 40 डेज ऑफ चैलेंज आप ट्राई करना। कोई सी भी आप एक हैबिट ले सकते हो, वट एवर हैबिट यू वॉन्ट टू ऐड इन योर रूटीन। इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड journaling, okay, or if you want to wake up early morning, so make a target of 30 to 40 days and start doing that, and don't forget to work on one habit. Okay, if you thought that I want to wake up at 5 a.m, so डोंट बी लाइक कि अगर आप 8 बजे उठते हो और आपने सेकेंड डे ही 5 बजे का अलार्म डाला और शायद आप उठ भी जाओ, बट थर्ड टू फोर्थ डे आप नहीं उठने वाले हो। ओके, सो आपको क्या करना है कि अगर आप 8 बजे उठते हो तो आपको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का उसके पहले आपको अलार्म डालना है। 5 to 6 डेज तक उसे कंटिन्यू करना है। जब आप उस टाइम पर उठ रहे हो, अगर आप 8 बजे उठते हो, मे बी आपने 7:30 पर आप रेगुलरली आप उठ रहे हो, तो उसके बाद आपको उस टाइम को आपको लाइक 7 कर लेना है। ओके, फिर आप 7 पर आप 5 to 6 डेज तक आप करो। उसके बाद आप उसे 6 कीजिए, 6 के बाद 5:30, देन 5, ऐसे कर कर आपको आना है। तो वो डेली आपका रूटीन हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ हम लोग करते हैं कि हम लोग रोज़ अगर आप 8 से 9 बजे भी उठ रहे हो, तो हम लोग डायरेक्टली 5 पर जंप करते हैं, और वो चीज़ वर्क नहीं करती है, और फिर हम उस हैबिट को ही क्लोज कर देते हैं। सो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एग्जांपल दिया है, उससे एक बार ट्राई कर। 9th इज रेगुलर चेकअप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन लाइक इन 6 to 7th मंथ एक मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पता चले कि आप फिज़िकली और मेंटली आप फिट है या नहीं है। तो एक मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर होती है जो बहुत टाइम के बाद हमें पता चलता है। बाकी जब अगर आप मेडिकल चेकअप करते हो तो आप भी एश्योर हो जाते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे इमीडिएटली एक्शन कर सकते हो, आप उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो। सो लाइक रेगुलर चेकअप और इन 6 to 7 month checkup is important. And last step, and I think it's the summary of all the 9 tips and 9 हैबिट्स, इज़ कि आप फर्स्ट डे में ही सारी 9 हैबिट्स को मत ऐड कीजिएगा, या 1-2 को भी मत ऐड कीजिएगा। स्टार्ट बाय वन वन हैबिट को आपको ऐड करना है। अगर बहुत टाइम लग रहा है दैट्स ओके, पर जो एक हैबिट को जब आप ऐड करो, तो वो जो हैबिट है वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जानी चाहिए। ओके, सो start with this, and if you like this video, please like, share, subscribe, and
which type of videos you want, just tell me in comment section.